روج والوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہونے لگا ہے. ان کے ذائچے کے ایسے پورشن میں جو ہے وہ آنے لگا ہے کہ جہاں پہ ان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. ایسی راہیں متعین کریں گے جہاں سے آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں. سورس آف ارننگ انہوں نے لگایا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک پیرل اور سورس کو جو ہے یہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیابی بھی انشاءاللہ ملے گی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زوار رضا جاوا صاحب. آپ نے ہماری پریویس ویڈیو دیکھی تھی, آپ لوگوں نے بہت زبردست ہمیں کمنٹس بھی دیے, آپ کا فیڈ بیک بھی میں نے دیکھا, اور بلکہ جاوا صاحب کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا آپ لوگوں کے کمنٹس, اور ان کو بتایا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ اس پہ کیا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں, جو آپ لوگوں کو بینیفٹس جس میں ملیں گے, وہ ٹاپکس ہم ریسرچ جو ہے شیخ زوار صاحب کی اس پر ہم نے نکالی ہے کہ مئی کا جو مہینہ ہے وہ کون سے زوڈیک کے لیے اچھا ہوگا. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ سے سر کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو اس کے اوپر جو ان کی ریسرچ ہوتی ہے, اور اب تو بلکہ نئی سے نئی ریسرچ ہی اپنے یوٹیوب چینل پر لے کر آ رہے ہیں, وہ بھی آپ ضرور وزٹ کیجیے گا اور اس کو دیکھیے گا, سبسکرائب بھی کریں ان کا چینل. ناظرین, مئی کا منتھ کیسا گزرے گا آپ لوگوں کے لیے, کس کو بینیفٹس ہوں گے, کس کو نقصانات ہوں گے, جانیں گے ہم شیخ صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ سر, بہت شکریہ سر. سر جو پریویس ویڈیو کی تھی اس پہ لوگوں نے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور بہت اچھا, مطلب کہ لوگوں نے مانا اس بات کو کہ جو آپ کی ریڈنگز ہوتی ہیں, وہ جو آپ کے ان کے کلائنٹس بھی ہیں, انہوں نے بھی مطلب آگے نیچے کمنٹس کر کے بتایا کہ جو آپ کی کیلکولیشن ہے وہ ماشاءاللہ بالکل قریب ترین ہوتی ہیں, مطلب ویسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ کہتے ہیں اسٹرالوجیکل. فلک, یہ اصل بات یہ ہے کہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو کلائنٹس ہیں, جو میرے ویور ہیں, میں ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاؤں. سم ٹائم کچھ ہارڈ کمنٹس بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جو لوگ صرف اچھا سننا چاہتے ہیں, ریئلٹی پہ نہیں ہوتے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا وہ بتائی جائیں. میں نے اپنے چینل پہ کافی سارے ڈفرینٹ ٹاپکس بھی کیے ہوئے ہیں, پلے لسٹ بھی موجود ہے, جو بھی وزٹ کرنا چاہے. میرے خیال میں کہ یہ انٹرنیشنل ٹاپک ہے جس کو میں نے ٹچ کیا ہے, آپ لوگوں کے لیے ہے, سب کچھ آپ کے لیے. ایکچوئل جو لوگ وقت پہ, حالات پہ, اور دوسرے لفظوں میں کہوں گا ستاروں کی چال پہ نظر نہیں رکھتے نا, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. میرا مقصد جو ہے, چونکہ میں اپنے چینل پہ جب بھی لے کے چلتا ہوں نا اپنی ویڈیوز کو, اپنی نالج کو, تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی فیملی ممبرس کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں سب کو اس کے لیے, اب اگر آپ کے ساتھ ہماری کولیبریشن یہ چل رہی ہے, آپ تشریف لائے ہیں, تو یہ بھی میرا ہی چینل ہے, یہ کسی اور کا چینل نہیں ہے, یہ میرا چینل ہے. تو یہاں پہ جو آڈینس ہے وہ میری فیملی ہے. تو میں اپنی فیملی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے دوست احباب کو, کیونکہ سب ایک ایج گروپ کے نہیں ہیں, بالکل ان کو جیسے ایڈوائز کرتا ہوں انویسٹمنٹس کے بارے میں, اگلے سٹیپس کے بارے میں. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کچھ کہا کہ یہ کچھ باتیں, اور میں نے کہا ٹھہر, جو فلک 25 جو ہے وہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, اس وقت کوئی بھی کمٹمنٹ کریں گے تو وہ نہیں باتیں چلیں گی, تھوڑی سی ٹھہر جاتے ہیں. یہ بلکہ میں ناظرین سے بھی شیئر کروں گا, 25 اپریل کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کمٹمنٹس وغیرہ نہیں کرنی. آپ یہ لوگ بھی سر سب مرکری دیکھیں, یہاں پہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے زوڈک سائن کے بارے میں بتا دیں. یہ جو جنرل ٹاپکس ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ مرکری ہے, اگر یہ ریٹروگریڈ ہوا ہے تو یہ 12 کے 12 زوڈک سائن میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا. مطلب کوئی فیصلہ نہیں لینا, کوئی کمٹمنٹس نہیں کرنی 25 اپریل تک. دیکھیں, اس وقت اگر آپ ایسا کچھ بھی کریں گے تو وہ آپ فلفل نہیں کر پائیں گے, آپ خود بھی. اچھا, آپ کا انٹرسٹ کہیں نہ کہیں لوز ہو جائے گا, اس میں کوئی لوپ نکل آئے گا, کوئی ایسی چیز نکل آئے گی کہ جس کی وجہ سے آپ اینڈ اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے. سو میں نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے چلایا کہ بھی تھوڑا سا, اگر آپ دیکھیں, ایسا نہیں ہم کہتے کہ آپ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں اس کو روک دیں, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ اثر غلطی ہے. میں اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں, میں اس کے ساتھ صدقہ بتاتا ہوں کہ بھی آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ جاری کریں. اس طرح آپ اپنی زندگی کے معاملات کو آگے لے کے چلیں. چونکہ بینگ اے مسلم ہم سیارگان کی پوجا نہیں کر رہے, ہم جو قوت اعلیٰ ہے پروردگار, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم آپ دیکھیں نا کہ سورہ فلق میں دیکھیں, سرکار دو عالم نے یہی تو کہا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا, میں جس کی عبادت کرتا ہوں. یہاں پہ ایک بڑی ڈفرینٹ چیز ہے, وہ پوجا اور عبادت, یہ فرق ہے.
तो जब हाकिम कुल परवरदिगार की ज़ात है तो उसने आपको कोई ना कोई रास्ते भी दिए होते हैं। इसी चीज़ को हम स्पिरिचुअल रेमेडीज कहते हैं। हमारे माशरे में कई लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं जी जो लिखा है वही होना है। मैं उनके लिए भी कहता हूँ कि अगर जो लिखा है वही होना है तो फिर दुआओं का कॉन्सेप्ट क्या है? बहरहाल आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, असल में तो ये बहुत कुछ है। आज हम एक प्लैनेट पे जो है वो बात करेंगे, फिर हम दोबारा बात करेंगे, फिर हम ये नॉलेज देते चले जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मई के, ठीक है। और जब हम आज बात कर रहे हैं तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जब वीडियो जब आएगी तो सन जो है वो ट्रांजिट करके आ चुका होगा टॉरस में। सन एक ऐसा प्लैनेट है कि जो मरकज है, जो कि तमाम सियारगान को हरारत भी देता है, रोशनी भी देता है, पावर भी देता है। इसका एक जो अभी हमें मिल गया हुआ है कि जी मून जितनी भी पावर लेता है वो सन से लेता है, लेकिन अगर आप देखिए तो सन एक मरकज है, तमाम सियारगन इसके गिर्द घूम रहे हैं। ये इसका एक सिस्टम बनाया परवरदिगार ने, इसके अंदर से जो वाइब्स निकलते हैं, जो एक कशिश है, उसने तमाम सिस्टम को ऐसे खड़ा किया हुआ है। ये परवरदिगार का जो है, जो कि हिकमत और दानाई का मंबा है, ये उस दाना और हिकमत वाले परवरदिगार का एक सिस्टम है जिसको क्या हुआ है। अब क्या होता है कि जब प्लैनेट्स आते हैं डिफरेंट एंगल्स पे आते हैं ना, तो वो डिफरेंट इम्पैक्ट जो है वो देते हैं। आज हम बात करेंगे सन पे। सन जो है, सन आ रहा है 19 अप्रैल को बुर्ज सौर में, टॉरस में। अब होगा क्या, सन जो है ये आपकी डिग्निटी है, ये एक लाइट है, एक सोर्स है। तो हर बंदे का फोकस जो है वो इस पोर्शन में लाजमी आएगा। सौर बुर्ज जो कि नेचुरली फाइनेंस से रिलेट करता है। नेचुरली मैंने क्यों कहा, नेचुरली से कहा कि जायचा फितरत जो है वो बुर्ज हमल से शुरू होता है। जैसे कि हमने नौरोज पे किया कि 20 मार्च को जो है वो सन आ गया एरीज में, तो नौरोज हुआ, यहाँ से जो है वो सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त इंसान ने बहुत कुछ किया अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, अपनी डिग्निटी के हवाले से। ये दो सब्जेक्ट हैं, एक नेचुरली, एक इंडिविजुअली। नेचुरली हम पहले बात करेंगे तो सन जो है वो आ रहा है दूसरे पार्ट में, बुर्ज सौर में। हर बंदे को जो फोकस है वो फाइनेंस के ऊपर करवाएगा। अच्छा। नेचुरली करवाएगा, ऑटोमेटिकली ज़हन में आएगा। देखें, आप एक जगह पे एंटर हो, आपकी सबसे पहले नजर उस जगह पे जाएगी जहां पे लाइट होगी। तो लाइट जो है वो अब टॉरस में है, बुर्ज सौर में है। तो हर बंदे का फोकस यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो जाना है। हर बंदे ने अब जो अपनी फाइनेंसेस पे काम करना ही करना है। अब देखने की बात जो है वो ये है कि जैसे ही 19 को ये यहाँ पे आएगा, हर बंदा यहाँ पे मतवज्जो होगा। लेकिन टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस, वो एक स्टेप पीछे है। और एक स्टेप पीछे जब भी प्लैनेट होता है, ये मैं आपके नाज़रीन को स्पेशली बताना चाहूँगा, समझ लीजिए इसको। जब भी कोई प्लैनेट एक स्टेप पीछे होता है तो वो बेनिफिशियल नहीं होता, उसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो वीक होती हैं, उसके इम्पैक्ट पूरे नहीं मिलते। तो अब आपका दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ आपकी तवज्जो हुई, आपने उसके ऊपर सोच विचार की, आप उसके ऊपर लेके चले, उसके बाद क्या होता है कि आपने फिर उसके ऊपर स्टेप्स लिए। तो क्या होगा, 19 को जब सन यहाँ पे आएगा तो आप लोगों की तवज्जो इस तरफ जो है वो ममदूल करवाएगा। आप इस चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, आप इसके ऊपर जो है वो काम करोगे। और फिर 29 अप्रैल को आप हिकमत खुदाबंदी देखें, पीछे ही जो है 29 अप्रैल को वीनस भी एग्जैक्टली यहीं पे आ जाएगा, अपने ही बुर्ज में, बुर्ज सौर में आ जाएगा। अब इसके बुर्ज सौर में आने से आपके मामलात में एक्सपेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे चले जाएं YouTube पे, जो कि मेरे नाम से है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने वहां पे अभी वीडियो की है। यूरेनस और जुपिटर की कंजक्शन हुई है, जुपिटर एक्सपेंशन है, यूरेनस अनएक्सपेक्टेड और सडन बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियों को जो है शो करता है। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस की हैं, एक आम पर्सन्स के लिए भी क्या होगा, तो ये आपका फोकस इस पर गया। और मैंने ये बताया भी कि यहाँ पे कि अब बहुत सारे मामला जो है वो चेंज होंगे दुनिया में, जैसे क्रिप्टो करेंसी के मामलात हैं, इसके अलावा कमोडिटीज़ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज पर, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत सारा काम जो है वो होगा। और ये दुनिया अब इस तरफ जो है वो जाएगी। ये लेकिन के महीने में सब स्टार्ट हो सर, ये स्टार्ट हो गया। मैंने अभी वीडियो जो है चंद दिन पहले इसके ऊपर अपलोड की है और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। और मैं आपको चैनल पे ये भी बताता चलूँ कि ये बहुत अहम वीडियो थी। ये इवेंट जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यूरेनस जुपिटर कंजक्शन का, ये
आफ्टर 13 ईयर्स आता है। 13 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि यूरेनस और जुपिटर जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे। अब अगले 13 साल बाद अब 13 साल के बाद इकट्ठे होंगे। मैंने ये बात अपनी उस वीडियो में भी डिस्कस की है। मैं दावत दूंगा जितने भी लोग हैं नहीं देखिए, जरूर देखें, आपके लिए है। अच्छा, अब क्या होगा, ये तब्दीली एक पहले मजहब जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इसके पीछे फौरन ही जो है, यानी जो मेरे नाज़रीन के पास ये वीडियो आई वो भी 19 और 20 को ही आई, ठीक। इसके पीछे ही सन जब यहाँ पे आएगा तो सन आपकी तवज्जो वहां पे दिलवाएगा। यानी एक कुदरती चेंज आया, क्लाइमेट चेंज हुआ, आपने फोकस किया और उस फोकस के ऊपर अब जो अगला काम होगा वो वीनस करेगा। अब हम सन पे चुके हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सन किन बुरूज वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने लगा है। उनके जायचे के ऐसे पोर्शन में जो है वो आने लगा है कि जहाँ पे उनके लिए फायदे ही फायदे होंगे। मैं यहाँ पे एक चीज और अपने नाज़रीन को बताता चलूं, एक प्लेनेट बहुत अच्छा भी कई बार जो है वो आता है तो वो तमाम ज़ोडिक साइन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, उसमें सिलेक्टेड के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर यही किसी के 12वें घर में आया तो उसके लिए डिफरेंट है, 6ठे घर में आया डिफरेंट है, 8वें घर में आया डिफरेंट है। सो ये ज़हन में रखा करें कि जिन बुरूज के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते उनके लिए थोड़े से मामला डिफरेंट होते हैं। उसके लिए फिर वही आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि जी आपके लिए क्या है, तो हम स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, आप लोग हम आपको बता देंगे, हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा जो मेरी वीकली वीडियोस होती हैं ना, मैं उसमें इन चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये है तो अच्छा, लेकिन आपके लिए नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हुकूमत अगर एक पार्टी की बनती है तो सारे पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाती। अल्टीमेटली कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, कुछ लोगों को कम, और कुछ लोग कैदोबंद में भी होते हैं, वो जैसे हमारे अभी भी चल। तो ये बिल्कुल उसी तरह ये निजाम भी आपने बड़ी ये निजाम है। तो सन जब आ रहा है जी, तो सबसे पहली बात ये कि ये टॉरस में आ रहा है। टॉरस वालों को अगर देखें तो ये इनकी तवज्जो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाएगा प्रॉपर्टी के मामले। इनके चौथे घर का लॉर्ड है, ठीक, तो इनकी प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो बढ़ाएगा। घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली और खरीद फरोख्त की तरफ इनका माइंड जो है वो अब चलना शुरू हो जाएगा और ये उस बारे में कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सकेंगे। जो घर नहीं मतलब बना वो बना सकेंगे, उनकी तवज्जो इस तरफ चलेगी। कोई प्लॉट ले लेंगे, कोई ना कोई स्टेप जरूर यहाँ पे ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, घर की तब्दीली जैसे मामला भी जो सामने आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव होंगे इंशाल्लाह। एक्चुअल चीज जो है कि ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात, सन को हम कहते हैं ये सोल है। अगर ये आपकी सोल है तो इस वक्त अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो आपको अपनी सोल रिपेयरिंग का जो है बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। और नाज़रीन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि सन जब भी आपके फर्स्ट हाउस में आता है इज्जत वकार में इजाफा करता है। चौथे घर का लॉर्ड है तो मुआशरे में आप जिस भी हैसियत के मालिक हैं आपको इज्जत वकार मिलेगा। आपके पेरेंट्स से, आप जहाँ पे रहते हैं उस इलाके से आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारियां जिसमें आपकी इज्जत वकार का पहलू वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। दूसरी बात, सन है तो गवर्नमेंट सेक्टर से, आपके वालिद से या आपकी वालिद की एज के लोग ग्रुप से, या जो ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही एम्प्लॉय हैं या जो मुआशरे में एक बड़ी इज्जत वकार के हामिल हैं, उनसे आपको बड़े फवायद जो है वो मिल सकेंगे। आपको नई जिम्मेदारियां तफवीज़ हो सकती हैं। ये मामला आपके लिए इंशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह चलेंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही आता है एरीज वालों के चूंकि दूसरे घर में ये हो रहा है तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंसेस के ऊपर चला जाएगा। यूरेनस नेपच्यून ने आपको अपने जो माशी पोजीशन है उसके ऊपर फोकस भी करवाया, उसमें तब्दीलियों का भी जो है वो आगाज कर दिया। सन ने आके अब यहाँ पे आपकी तवज्जो करवानी है और इसमें मजीद बेनिफिट उस वक्त होने हैं जबकि 29 अप्रैल को वीनस ने यहाँ पे आ जाना और वीनस ने यहाँ पे 23 मई तक रहना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा इसके ऊपर काम करने का और अपनी माली पोजीशन को सस्टेन करने का। आप इसको एक नए तरीके से बैलेंस करने की तरफ जाएंगे, स्पेशली एरीज वाले जो लोग हैं। स्पेशली कई एरीज जो है वो एक से ज्यादा कामों की तरफ जाएंगे। जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग उन्होंने लगाया हुआ है उसके साथ एक पैरेलल और सोर्स को जो है ये खड़ा करने की कोशिश करेंगे और कामयाबी भी इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह
फिर वीनस चूंकि खुद भी यहीं पे आ जाएगा, तो एक किस्म की आप समझ लें कि आपके खाने माल में एक मैग्नेट लग गया, अब वो सारा लोहा ऐसा ऐसा खींचते हुए आपकी तरफ जो है वो आता चला जाएगा। तो फाइनेंशियल हवाले से एरीज वालों को अगला महीना इंशाल्लाह आपका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रहने वाला। तो उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है, ये नहीं मेहनत छोड़ के बैठ जाए कि अल्लाह ही खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फलक, मैंने आपको भी देखा आपके चैनल पे, मैंने अभी लेटेस्ट जब विजिट किया तो बहुत सारे साहिब इल्म लोगों के आप इंटरव्यूज करें, ये आपकी मेहनत है जी सर, और ये उसका रिजल्ट आएगा। आप वो कहते हैं ना कि हमने बचपन में सुना था कि बेटा हीला करो वसीला परवरदिगार बन, तो आपको हीला जरूर करना है, आपको कोशिश जरूर करनी है, जरूर करनी, ठीक है। तो इनके लिए एक से ज्यादा कामों के खुलेंगे। और एरीज वालों को एक चीज और बताता चलो, आपको बहुत बड़े जो है वो एक सेटिस्फेक्शन होगी आपके बच्चों के हवाले से। आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त होगा, उनकी इज्जत अफजाई में आपकी इज्जत अफजाई होगी, और ये आपको ड्यूल इम्पैक्ट जो है वो इंशाल्लाह मिल सकेगा। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह होने वाला है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा जंप करें तो अगली तरफ हम चले गए तो कैंसर आ गया, कैंसेरियन। हाँ, कैंसेरियन के लिए जो बेनिफिट होना है, आपको डबल बेनिफिट जो है वो मिलना है। आपका सबसे पहले तो ये है कि ये 11वें घर में आ जाएगा। 11वां घर जो है गुड लक का घर है, आपके गोल्स का घर है, आपके टारगेट्स का घर है, आपके दोस्त अहबाब का घर है, आपकी जो भी होप्स है, बड़ी ख्वाहिशात है, स्पेशली अगर उनका ताल्लुक फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होगी। आप पूरे फोकस होंगे कि आपने किस तरह अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करना है, जिसका अल्टीमेटली जो ताल्लुक होगा वो या तो आपके रिलेशनशिप्स के साथ होगा या आपकी फाइनेंस के साथ होगा। कुदरत जो है वो आपके ऊपर पूरी मेहरबान होगी और इस तरह आप अपनी फाइनेंसेस को जो है वो गैदर कर सकेंगे। ना सिर्फ गैदर कर सकेंगे बल्कि यहीं से आप एक नए गोल्स भी जो है वो सेट करेंगे। आप यहाँ से नए गोल्स सेट करेंगे और ये गोल्स आपको जो है वो आगे की तरफ जाने में इंशाल्लाह जो है वो मदद देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देता चलूँ। ऑलवेज मैं कैंसेरियन को कहता हूँ कि कैंसेरियन आप अपने हाथ में एक रूबी पहने। उसकी दो वजूहात होती हैं। रूबी मैं क्यों कहता हूँ? रूबी मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी हमने जिक्र किया कि कैंसर का जो साइन लॉर्ड है वो है मून को जो पावर मिलती है वो मिलती है सन से मिलती है। तो ये अल्टीमेटली आपके लिए पावर्स का है, आपकी फाइनेंस का भी रिलेटेड है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह जो है वो लेके जाएगा। अपने हाथ में एक रूबी पहने और ये जो टाइम है इसको अपने लिए x2 कर ले, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले। आप इसको डबल इम्पैक्ट जो है वो आपको बल्कि मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बल्कि यहाँ पर मैं लोगों को बताऊंगा कि जेम स्टोन का भी जो शेख ज़वार साहब में काम करते हैं, इनको सर स्टोन वगैरह का भी मैं चाहूँगा आप बताएं थोड़ा। कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी स्टोन पहनने से 60 सती कम ख़त्म हो जाए या माली मामला उनके बेहतर हो जाए, तो वो स्टोन भी होते हैं सर? देखिए, कुदरत ने कोई एक चीज़ एक ज़र्रा भी बिला वजह खल्क नहीं फरमाया। हर चीज़ में परवरदिगार की एक हिकमत है और सिर्फ एक हिकमत नहीं है, वो मल्टी डायमेंशंस में होते। इवन के कहते हैं सांप दुश्मन है इंसान का, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, इंटरनेट पे चल लें, तो सांप का जो जहर है वो अद्वियात बनाने में काम आता है और वही फला के लिए भी। अब डिपेंड ये करता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सा स्टोन वेयर करना चाहिए। इवन कि मैं आप सबको कहूँगा कि इस मामले में बड़ा मोहतात रहा करें। हमारे पास कई लोग आए कि हमारे सामने बैठ जाते हैं और हम बात भी कर रहे होते हैं, हम एक बार सोचे होते हैं इनको गाइड भी करें या ना करें, लेकिन अल्टीमेटली मेरे से तो नहीं रुका जाता। यानी उनको ये भी नहीं पता कि ये स्टोन पहनना कहाँ पे है। स्टोन पहने हुए हैं। पहली बात, अगर ये जैसे कि मैंने आई ग्लास यहाँ पे लगाई हुई है, ये मेरी आंखों के ऊपर तो मुझे काम देगी, लेकिन फलक अगर मैं इसको उठा के अपने माथे पे रख लूंगा तो ये मुझे फायदा देगी? नहीं देगी। इससे भी आगे चले, अगर ये मेरी नजदीक की ऐनक है और मैं इसको लगा के दूर देख रहा हूं तो मुझे फायदा देगी? नहीं। तब अगर दूर की ऐनक है तो मैं नजदीक देखने की कोशिश करूंगा, ब्लर हो जाएगा। तो हर चीज एक स्पेसिफिक एंगल्स पे है, उन चीजों को समझना और फिर उसके मुताबिक। चूंकि मैं एक जेम थेरेपिस्ट भी हूँ और कई लोग ऐसे हैं जिनको कि हम पढ़ने के लिए बताते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं पढ़ सकते, कुछ भी रीजन है, हम इसके ऊपर बात नहीं भी करते। कई लोगों को हम नकूश के बारे में कहते हैं हमारा एतकाद नहीं है, ओके फाइन, सदका बता देते हैं, जम बता देते हैं,
चलेंगे पर। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमें जेम्स पे भी जो है वो नहीं हमारा बिलीव, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सर मगर जेम्सटोन भी जो आपको पार्ट मैं चाहूंगा कि यहाँ पे डिस्कस हम करें, और वो थोड़ा सा उनके इफेक्ट्स और जो उनके पॉजिटिव लोगों के ऊपर पड़ते हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस इंशाल्लाह ये भी करेंगे, चूंकि हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और हर बंदे का स्टेमिना नहीं होता कि वीडियोस जो है वो देख लें। यूरोप में तो खैर हमने देखा जी घंटे घंटे 1.5 घंटे की लोग वीडियो देखते हैं, हालांकि वो समझा ये जाता है कि उनके पास टाइम कम है, लेकिन वो लोग इसको देखते हैं। अच्छा, हम आगे चलें तो हमारा अगला जो ज़ोडिक साइन है जो वो आता है उसके बाद वर्गो वालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो होने लगा है। ये आपके जायचे के 9th पार्ट में आने लगा है। 9th पार्ट स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिक है, 9th पार्ट विजडम से मुतल्लिक है, 9th पार्ट आपकी हायर एजुकेशन से मुतल्लिक है, 9th पार्ट जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन से मुतल्लिक है। 9th पार्ट में अब मजे की बात यह है कि ये 12वें का भी लॉर्ड है। अब वो लोग जो कि रूहानियत की तरफ मतवज्जो होते हैं वो इस वक्त अपने जो अमाल है वो स्टार्ट कर सकते। आपके सोसालिज़ो करब का घर है, आपकी अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्जाम देना है उसके लिए ये बेस्ट टाइम है, और आपकी तवज्जो होगी उसकी बिगिनिंग के लिए। यहाँ पे चूंकि सन बहुत अच्छा है और आपके ऐसे पोर्शन में मौजूद है 9th पोर्शन में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शऊरी और लाशऊरी दोनों तरीके, चूंकि 12वें घर का भी लॉर्ड है तो ये लाशऊरी तौर पर भी आप इस तरफ जो है मुतवज्जो होंगे। स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बहुत ही आला है। वो लोग जिनको रिजत का खतरा होता है अमाल में, वो इस वक्त अगर अमाल स्टार्ट करें तो उनके लिए बड़ा ही आइडियल ये जो है वो साबित हो सकता है। अच्छा, ये आपको कोई ओवरसीज ट्रैवल करवा देगा, आपके माइंड में जो है वो कुछ चीजें जो है वो बेनिफिशियल होंगी कि आपको फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट्स मिल सकें, या आप इमिग्रेशन का असूल जो है वो कर लें, तो इस तरफ आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस का एलिमेंट जरूर शामिल होगा क्योंकि टॉरस है। ठीक, तो आपके लिए ये बड़ा ही जबरदस्त जो है वो इंशाल्लाह साबित होना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताते चलो, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कैंसर वालों को, मैंने कहा कि आप जी रूबी पहन लें, बट आपको वर्गो में कहूंगा कि आपने रूबी नहीं पहनना। यही वो चीज है जो मैंने पहले कहा कि हर चीज हर बंदे के लिए नहीं होती, किसी के लिए बहुत अच्छी, किसी के लिए बहुत बुरी, प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो अगर आप इस वक्त जो है वो रूबी पहन लेंगे यानी याकूत पहन लेंगे तो आपके अगेंस्ट जो हिडन एनिमीज हैं ये बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एक्टिवेट हो जाएंगे। आपने ये काम नहीं करना, आप दूसरे तरीके से इसको जो है वो लेके चल सकते हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। शौरी लाशौरी तौर पे आप फोकस्ड होंगे और फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं स्पेशली वर्गोस, उन्हें बड़ी कामयाबियां इंशाल्लाह मिल सकेंगी। फॉरेन से आपके लिए चीज़ें जो है वो आएंगी, चाहे वो आपका कोई बहन भाई वहाँ पे हो, कोई दोस्त हो, या कोई बिजनेस मैटर आपका हो, यहाँ से आपको बहुत सारे फवायद जो है वो मिल सकते हैं। हमारा जो अगला ज़ोडिक है वो है कैप्रिकॉर्न वो गुड लक और खुश नसीब है जिनके जायचे के एग्जैक्टली 5वें घर में जो है ये आने लगा है। 5th हाउस जो है ये कई एक चीज़ों से रिलेटेड है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ अगर 5वें घर में और बुर्ज सौर में आने लगा है तो सबसे पहली कैप्रिकॉर्न्स के लिए खुशखबरी ये है कि इनका कोई बड़ा इनाम जो है, कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट जो है वो इनका लग सकता है। क्या बात है। अच्छा, फिर दूसरा जो एक और जैकपॉट मैं कहूँगा असल जैकपॉट तो ये है कि आपको परवरदिगार के फजल से औलाद नरीना की खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। स्पेशली वो लोग जो कैप्रिकॉर्न्स के हैं, अब मैं उनसे कहूँगा कि आप दुआ का सहारा लें और जो उसूल औलाद के हवाले से दुआएं हैं उनको स्टार्ट कीजिए, और यकीनन परवरदिगार मेहरबानी करेगा तो आपको यहाँ पे औलाद के हवाले से खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छी अपॉइंटमेंट जो है वो भी मिल सकती है, बिकॉज के 5वां घर ये रिप्रेजेंट करता है आपके विजडम को, आपकी कुछ लोग इसको भी लक का घर भी कहते हैं। यहाँ पे बड़े फवायद का असूल आपके लिए मुमकिन होगा। फिर इसके बाद 5वां घर आपके एंगेजमेंट के हवाले से भी है, 5वां घर जो है वो आपकी लव लाइफ के हवाले से भी है। तो इन दोनों सेक्टर में भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बिलखसूस जब वीनस भी यहीं पे आ जाएगा आपके जायचे के 5वें घर में। 5वें का वीनस बताता है कि आपकी मंगनी तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे, और जिन लोगों को इस वक्त प्रपोजल आएंगे वो ऐसी जगह से प्रपोजल आएंगे
کہ جہاں پہ جس پرسن کا پروپوزل آئے گا وہ آلریڈی بہت ہی صاحب علم اور صاحب بصیرت بھی ہوگا اور صاحب عزت بھی ہوگا. زبردست. ایسے لوگوں کی جو ہے وہ آپ کو پرپوزل آئیں گے. ایک سے زائد کاموں کی طرف انویسٹمنٹ آپ کریں گے. ایجوکیشن سیکٹر جو ہماری تمام چیزوں کی بنیاد ہے وہ ہے ایجوکیشن سیکٹر. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کی توجہ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. اور کچھ جیسے کہ اسکیل 12 سے 14 کی ایجوکیشن ہے اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی اسکیل 12 کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے ایگزام بھی سٹارٹ ہونے لگے. تو آپ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوگا. واہ. پہلی بات ایگزام اچھے ہو سکیں گے. دوسری بات آپ کو جو بینیفٹ ملے گا آپ یہاں پہ انہی ایگزامز کے دور میں یا کم از کم جو ہے وہ 20 مئی سے پہلے کوئی ڈیسیژن لیں گے انشاءاللہ جو کہ آپ کے کیریئر کی نئی راہیں متعین کرے گا. جیسے کہ جوپیٹر اور وینس کا کنجکشن بھی جو ہے جوپیٹر اور یورینس کا کنجکشن یہی ٹورس میں ہوا تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا وزڈم چینج ہوگا. آپ کے معاملات میں تبدیلی آئے گی اور یہ تبدیلی آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگی. انشاءاللہ آپ یہاں سے اپنی کیریئر کی ایسی راہیں متعین کریں گے جہاں سے آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی چلی جائیں گی. پھر اگر آپ کے کوئی وراثتی معاملات رکے ہوئے تھے کیپریکونس کے, کہیں کوئی پیسے پھنس گئے ہوئے تھے, کوئی اگر مشترکہ مفادات میں آپ کام کر رہے ہیں, جوائنٹ ایڈونچر میں کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی بہترین ریوارڈ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا یہاں پہ. تو کیپریکونس آپ تمام کو یہ بینیفٹس جو ہیں انشاءاللہ ملنے والے ہیں. سر بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے یہاں پہ گائیڈ کیا. بس ایک چھوٹا سا اس میں کوشچن ضرور کروں گا. ہاؤس وائفس بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ اسکپ ہو جاتی ہیں, ان کے حوالے سے کیسا رہے گا یہ؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ایریز کے یہ اسکارپینس کے 7ویں گھر میں جو ہے وہ آنے لگا ہے. 7ویں گھر میں کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کو ریلیشن شپس کے اوپر جو ہے فوکس کروائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے جو اسپاؤس ہے اس کے مائنڈ میں تھوڑا سا ڈگنیٹی کا جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب 7واں گھر کو اگر میں دیکھوں اور وہاں پہ سن ہو تو یہ ریلیشن شپ میں تھوڑا سا گیپ کر دیتا ہے, چونکہ ایک پرسن تھوڑا سا ہائپ پہ چلا جاتا ہے. لیکن ہوگا کیا 29 کے بعد جب کہ ایگزیکٹلی یہیں پہ جو ہے وہ وینس بھی آ جائے گا تو یہ ساری ڈگنیٹی, یہ سارا وہ جو اکڑ شکڑ ہے وہ کہیں سائڈ پہ چلی جائے گی اور پیار محبت آپ کے مابین جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. اب ہم صرف سن کو نہیں بات کریں, اب ہم سن اور ٹورس کی بات کریں, سن اور وینس کی بات کریں. وینس یہاں پہ آ کے تو ان معاملات کو بہت اچھے طریقے سے جو کرے گا. تو آپ کے لیے ٹپ کیا ہے؟ آپ کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 8-9 دن جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی پلانٹ آتے فوراً نہیں دیتا, 4-5 دن لگتے ہیں اس کو اپنی ڈگریز کو میچور کرتے, پھر جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ دے پاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات جو ہے وہ اگلے دنوں میں 8-9 دن آپ کے محتاط, اس کے بعد انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. سر بہت شکریہ. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آج تو مجھے لگ رہا ہے میں یونیورسٹی کا انٹرویو کر رہا ہوں, اور جس طرح ماشاءاللہ نالج ان کا زبردست طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو سر اس طرح بینیفٹ مطلب ملیں گے, اور یہ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ سب فلک میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سب جو ہے وہ پروردگار کی عطا ہے. بے شک. یہ جو انسان ایک کہتا تھا کہ جی میں نے یہ کیا, یہ میں کہنے کے لیے نا یہ لہن یہ دہن یہ سب اس کو پروردگار ہی دیتا ہے. پروردگار ہی دیتا ہے. آپ کی دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا محتاج ہے کہ وہ یہ جو اس کے لعاب آ گیا نا اس کو نیچے بھی نہیں لے کے جا سکتا. تو پھر اتنا محتاج ہو اور کہے کہ جی کہ میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا, یہ ممکن نہیں. یہ سوچ کے دیکھیں تو بڑی گہرائی میں آپ چلے جائیں گے جب اس پہ اگر سوچیں گے تو. لیکن کیا کریں کہ لوگ ہیں سر بہرحال. تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ زوار رضا جاوید صاحب کا نالج, اور آئی ہوپ آپ کو بہت چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں ایز اے ٹیچر بھی, ایز اے بھائی بھی, اور آپ کو سجیسٹ بھی کی ہیں, گائیڈ بھی کی ہیں. اب کرنا آپ لوگوں نے ہے, ٹھیک ہے, جن زوڈیک کو بتایا وہ فیڈ بیک ضرور دیں کہ اگر آپ یہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں یا یہ چیزیں آپ پہ فیل کرتے ہیں ایسا بنتا ہے آپ کے ساتھ چانس, تو اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں. اسکرین پہ سر کا نمبر چل رہا ہے, جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور شیخ زوار رضا جاوید صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.